Topic at hand for today's lecture is psychological conflict. In this lecture, we will discuss how a person gets involved in a conflict and how is it called a psychological conflict. क्या factors हैं इसके? What are the different types that a person gets into conflict with? और किस तरह से उसके साथ cope किया जाता है? We're going to discuss first of all what is actually a psychological conflict. It's a very easy concept to grasp, to understand. This will be quite short and quite easy to do. Now, first of all, conflict has been derived from a Latin word and it means striking two things at the same time. यानी कि एक ही वक्त में दो चीजें हैं जिनके अंदर से आपने choose करना है. The conflict is an opposition or a tug of war between contradictory impulses. यानी कि आपके desires हैं दो तरह के हैं, आपस में contradictory हैं और उनमें से कोई एक आपने choose करना है. It is like a tug of war. There will be one winner at the end. According to Coleman, a conflict is the anticipated frustration entailed in the choice of either alternative. यानी कि you have to make a choice between different alternatives और उनको choose करने में उस decision process में आपको frustration जो feel होती है, that is what makes it a psychological conflict. Conflicts occur in the individual when more than one equally powerful desires or motives present at the same time and pressurize for immediate satisfaction. यानी कि you have to make rapid decisions and rapid choices जो कि एक ही वक्त में आपके सामने आती हैं और आपको in simple words दोराहे पे लाकर खड़ा करती हैं जहाँ पे आपको कोई एक रास्ता चुनना होता है और उसको adopt करना होता है. Either you like it or not. The different types of conflict. The first one is approach conflict. इस तरह के conflict में generally क्या होता है कि you have two desires, दो जिनकी equal valency होती है, which are equally positive and are equally powerful. जिस तरह आपको एक ही वक्त में दो आपकी dream jobs हैं and आपको दोनों की तरफ से एक ऑफर आ गया, very lucrative, attractive job offers, जिनमें से कोई एक आप कर सकते हैं. तो choosing between those two jobs, those two offers, these two alternatives जो कि दोनों positive हैं आपके लिए, this creates somewhat tension in the decision making process. अब इस तरह के जो conflicts होते हैं ये negative नहीं होते, they are not harmful, because आप जब एक select कर लेते हैं तो दूसरा automatically अपने importance को खो देता है, क्योंकि अब हो सकता है कि किसी ऐसी सिचुएशन में हो इंसान जिसमें चॉइस डिफिकल्ट हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है कि either if someone has to make a choice between loving their parents and having a marriage of their own choice, out of their own choice, शायद उनके पेरेंट्स को ना पसंद हो, तो उस तरह की सिचुएशन में अब दोनों पॉजिटिव हैं. You love your parents as well and you probably love the person who you want to get married to as well, but in such a situation you have to choose one जिसमें से कोई एक चीज आपके लिए शायद तकलीफ दे हो choose करने में. Such cases are like you cannot have the cake and eat it too. यानी कि आप you cannot keep all the thing or everything in your favor. Now the individual will be psychologically torn and may lose equilibrium. अब इस तरह है कि जिस तरह a person is between two positive goals और उसको किसी एक साइड की तरफ अपने आप को लेके चलना है. And the second one is avoidance conflict. जिस तरह approach conflict में दोनों चीजें approachable थी, दोनों पॉजिटिव वैलेंसी रखती थी. इसी तरह जो आपका अवॉइडेंस कंफ्लिक्ट है यहाँ पर दोनों चीजें आपको पसंद नहीं है, दे आर अनडिजायरेबल, बोथ आर negative balanced. ठीक है. At times the individual is forced to choose one among two negative goals. यानी कि दोनों चीजें unwanted हैं लेकिन किसी एक को choose करना पड़ेगा. For example, a woman must work at a job which she dislikes very much or else she has to remain unemployed. ना वो unemployed रहना चाहती है, ना उसके पास कोई और job options हैं, तो she has to stay either on the job or she has to resign from the particular job and become unemployed. अब दोनों चीजें जो है वो उस खातून के लिए negative valency रखती हैं, तो she must choose one. तो generally क्या करेगी वो? She will choose to stay working at the particular job. अब इसमें क्या होता है? The person is caught between two repelling threats, fears और situations. अब इस तरह में आप किसी भी एक चीज को नहीं चूज कर सकते, बिकॉज दोनों में से किसी भी एक चीज को चूज करेंगे आप तो उसके नेगेटिव आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, आपके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे they may be harmful to you. For example, a person who cannot convince the mother or wife may resort to alcohol consumption which is otherwise dangerous, या फिर suicide कर लेते हैं लोग इस तरह की अक्सर सिचुएशंस में जहाँ पे उनको डेड एंड नजर आता है, उनको लगता है कि वो लाइफ में अब आगे किस भी डायरेक्शन में जाएंगे, तो जनरली दे बिकम वेरी वीक साइकोलॉजिकली इस तरह के कन्फ्लिक्ट में, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि वो अपनी जान ले लेते हैं.
Now, in the event of such conflicts where there is no escape, some people may find a way to reduce their tension by developing amnesia or defense mechanisms like regression or fantasy. Generally क्या होता है, आपके कुछ defense mechanisms होते हैं that kick start जिस टाइम आप इस तरह के conflicting situation में होते हैं, just to make sure that you do not do something abrupt, something that harms you permanently or damages you in a way that you cannot recover from, या फिर आपके physiological arousal को थोड़ा सा curtail करने के लिए, आपको stress से बचाने के लिए, आपके defense mechanisms जो कि unconscious होते हैं आपके, they are a tool for helping you combat stress and such conflicts. तो वो जिस टाइम ट्रिगर होते हैं ना, यहाँ पे जो दो आपके मैकेनिज्म लिखे हुए हैं, एमनीजिया इज बेसिकली लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, एंड रिग्रेशन और फैंटेसी का मतलब ये है कि आप ऐसे अपने किसी जिंदगी के वक्त के बारे में सोचना शुरू कर दें, ज्यादा सोचना शुरू कर दें, याद करने लग जाएं जिसमें आपकी लाइफ बहुत अच्छे से गुजर रही थी, बहुत पॉजिटिव चीजें हो रही थी आपके साथ, या फिर आप फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाएं और आप बहुत अच्छा सोचें, बहुत अच्छा इमेजिन करें, जो कि आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो जो आप the choice that you are being forced to make, आप उस चीज के साथ for the time being cope कर जाएं जब तक वो नेगेटिव उसके consequences जो हैं वो पास नहीं कर जाते. The third type is approach avoidance conflict. अब हमने पढ़ा है approach conflict जिसके अंदर दोनों outcomes desirable हैं. Then we have done avoidance conflict जिसके अंदर दोनों outcomes जो हैं वो आपके undesirable, unwanted हैं, negative balanced हैं. जो आपका third है वो है approach avoidance conflict. Now this is the most complex one. यहाँ पे क्या होता है कि in this type of a conflict, a person is both attracted and repelled by the same goal object, यानी कि एक ही goal object है जिसकी वैलेंसी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, यानी कि there are not two outcomes, there are not two choices, there is just one choice and दोनों की जो है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है. Now the positive valence attracts the person, but as he approaches, the negative valence repels him back. अब attraction से उसको initially attraction होती है, and but when the person gets close to the particular goal, उसके अंदर negativity उसको नजर आना start हो जाती है और वो उसकी वजह से कतराने लग जाते हैं उस चीज को fully wholesomely adopt करने में. Attraction of the goal and inability to approach it leads to frustration and tension. Now this can be in सच वे कि आपको एक पर्टिकुलर चीज से अट्रैक्ट कर रहे हैं आप, लेकिन उसको आप सही तरीके से कर नहीं पाते, बीच में कोई बैरियर्स आ गए हैं आपके जिसकी वजह से आपके लिए वो जो सिचुएशन है वो अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट की बन गई है, या फिर आपका जो आप काम करना चाह रहे हैं, जो आपका लास्ट गोल है फाइनल, वो आप करना चाहते हैं क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर गोल जो है वो मिल रहा है, बट उसके साथ में जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके वो आपके नेगेटिवली है ना. फॉर एग्जाम्पल, a person approaching to accept a job offer because his salary is attractive, but at the same time he is repelled back as the job is very risky. इसी तरह से a man wants to marry to lead a family life but does not want the responsibilities of the family life. यानी कि आप एक पर्टिकुलर आउटकम, एक पर्टिकुलर गोल को पाने के लिए उसके जो डायमेंशंस इस टाइम पे देखते हैं, तो कुछ डायमेंशंस पॉजिटिव हैं जिसकी वजह से आप चाहते हैं वो करना, और कुछ डायमेंशंस आपके नेगेटिव हैं जिसकी वजह से आप उससे रिपेल हो रहे होते हैं. So now this kind of conflict is extremely कॉम्प्लिकेटेड वन, और ये आपको सबसे ज्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेशन और टेंशन में डालता है. Now अगर आप इसकी देखिए नीचे diagrammatic representation, the person is being attracted to a goal because of its positivity, but the negativity of the goal itself is repelling the person, जिसकी वजह से वो उसको पा नहीं रहा, या फिर वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है. The fourth type of conflict is multiple approach avoidance conflict. अब इस तरह की सिचुएशन क्या होती है कि जिस तरह से हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि आपका जो अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे एक गोल है जिसकी बहुत नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो है वैलेंसीज हैं. जो आपका मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे क्या है कि समटाइम्स इन लाइफ वी कम अक्रॉस सिचुएशंस जिसके अंदर दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव वैलेंसीज होते हैं ऑफ मल्टीपल नेचर, यानी कि आपके जो दो ऐसी सिचुएशंस में आ रहे हैं या आप ऐसी ऑल्टरनेटिव्स में एक वक्त में आ रहे हैं जहां पे आपको पॉजिटिविटीज भी नजर आ रही हैं बट आपको नेगेटिविटीज भी नजर आ रही हैं. फॉर एग्जांपल, सपोज अ वुमन इज एंगेज्ड टू बी मैरिड. The marriage to her has the positive valencies like providing security to life and marrying a person whom she loves very much. ठीक है, तो ये उसकी positive valencies है. लेकिन suppose on the other hand
if the marriage is repellent to her because she has to quit her attractive job and salary, recognition जो है उसकी जिस वजह से वो इंडिपेंडेंट है, जो उसको छोड़नी पड़ रही है शादी करने के लिए, ठीक है। अब इसी तरह से आपकी जॉब के अंदर पॉजिटिव चीजें, आपकी एक अट्रैक्टिव जॉब है, आपको इंडिपेंडेंट बना रही है, आपको सैलरी, it gives you recognition as well, तो वो आपके लिए पॉजिटिविटी है, but because you have to leave it, why? Because you want to get married. अब मैरिज भी है, उसके लिए पॉजिटिविटी है, because you want to get married to a person who provides you security in your life. आपको लाइफ में अश्योरिटी या सर्टेनिटी रहती है, आप उस इंसान से मोहब्बत करते हैं। अब ये दो ऐसी सिचुएशंस हैं जिनके बीच में इंसान जो है वो टग ऑफ वॉर में है, वो दोनों चीजों को छोड़ भी नहीं सकता, वो दोनों चीजों को कम्प्लीटली अगर एक चीज को चूज करेगा तो कोई आपको लाइक कंफ्लिक्ट इस तरह से आ जाएगा कि उसकी जो रेजोल्यूशन है इट विल डिपेंड अपॉन द सम टोटल ऑफ बोथ वैलेंसीज, यानी कि अगर जो दोनों सम टोटल ऑफ अट्रैक्टिव बैलेंस टेक्स द अपर हैंड, ठीक है, अगर तो जो शादी करना चाह रही है वो फॉर एग्जांपल उसकी पॉजिटिविटी जो है वो आपके जॉब छोड़ने की जो नेगेटिविटी है उसको आउट लाइक क्रॉस कर जाती है, आउट गो कर जाती है, पॉजिटिविटी उसकी नेगेटिविटी को ओवरकम कर जाती है, तो फिर इस तरह के कंफ्लिक्ट में उसके लिए ये डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इफ द सम टोटल ऑफ अट्रैक्टिव बैलेंस टेक्स द अपर हैंड, शी विल क्विट द जॉब एंड गो फॉर मैरिज, अदरवाइज शी मे रिजेक्ट द मैरिज एंड कंटिन्यू द जॉब इफ द सम टोटल ऑफ नेगेटिव बैलेंस इज पावरफुल। फॉर एग्जांपल उसकी मैरिज जो है वो उसको उस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड ना कर रही हो शायद, या शायद वो उस इंसान से उस तरह से मोहब्बत ना करती हो, whatever the cause may be, अगर नेगेटिविटी उसकी मैरिज में से आता है तो she will continue the job, अगर नेगेटिविटी का कंटेंट बैलेंसी जो है उसका सम टोटल एक्सीड कर रहा है, ठीक है, और अगर इसी तरह से पॉजिटिविटी ज्यादा एक्सीड कर जाती है तो she will quit the job and go for the marriage. Now, how do you resolve conflicts, या किस तरह से उनकी रेजोल्यूशन जो होती है ना, अब इनकी जो कंफ्लिक्ट अराइज करते हैं वो तो फ्रस्ट्रेशन से है, क्योंकि आपको compete करना पड़ रहा है डिफरेंट गोल्स के लिए, उनके बीच में डिसाइड करना पड़ रहा है, कंपटीशन है उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंसेस में। सम कंफ्लिक्ट्स आर ऑफ ग्रेट डेंजर टू मेंटल हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, हेंस बहुत जरूरी होता है कि आप क्विकली रैपिड डिसीजन मेकिंग करें और आप जल्दी उनको वे करें और उन सबको अंदाजा लगाएं व्हाट इज बेटर फॉर यू in the particular situation. Otherwise, they may be carried on to the unconscious level, resulting in psychological problems and psychosomatic disorders. Psychosomatic disorders वो होते हैं जो कि आपकी psychological disturbance की वजह से आपको physiological issues आना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह हम arousal की बात करते हैं, हो सकता है आपको palpitations होना शुरू हो जाएं, या आपकी बॉडी में एक होना स्टार्ट हो जाए और उसकी कोई आपकी मेडिकल उसकी कोई ग्राउंड ना बन रही हो, कोई इलनेस आपकी ना हो बट वो स्टिल हो रहे हो, तो these are psychosomatic symptoms and disorders. The clash between the urges, desires and motives may go on without being fully aware of it. These forces may disturb the individual, causing a lot of mental turmoil. यानी कि it is very much possible कि आप जब इस तरह की choices कर रहे होते हैं तो आपको ना पता हो कि इन सब के बीच में आप किस तरह के psychological issues और frustration से गुजर रहे हैं. It might go unnoticed and be carried on to the unconscious level. अब इसकी रेजोल्यूशन जो है डिपेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द टाइप ऑफ कंफ्लिक्ट। आपका जो डबल अप्रोच कंफ्लिक्ट है वो तो बहुत इजीली सेटिस्फाई हो सकते हैं, आप उसको बहुत इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज उन दोनों में से आप जस्ट वे कर लेंगे कि दोनों में से पॉजिटिव ज्यादा कौन सा है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दी है, स्टूडेंट अटेंडिंग द क्लास फर्स्ट देन गोइंग फॉर फूड इवन इफ ही इज हंग्री। यहाँ पे क्या है कि उसके लिए क्योंकि क्लास अटेंड करना इस टाइम पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो द पर्सन द स्टूडेंट कैन wait till the class ends to go and satisfy his hunger, satiate his hunger. Alternatively, this conflict is resolved by giving up one of the goals. ये भी हो सकता है कि बच्चा ये डिसाइड करने के बजाय, स्टूडेंट ये डिसाइड करने के बजाय कि वो पहले क्लास ले ले और फिर जाके कुछ खा ले, हो सकता है कि वो सिर्फ क्लास ले ले और अपना दूसरा गोल जो है इसको टोटली ड्रॉप कर दे, ठीक है। बट आपका जो अप्रोच कंफ्लिक्ट है वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी जनरेट नहीं करता, लेकिन क्योंकि द इंडिविजुअल इज नॉट लूजिंग अ लॉट इन द सिचुएशन।
अब जो डबल अवॉइडेंस कंफ्लिक्ट है यानी कि अवॉइडेंस अवॉइडेंस कंफ्लिक्ट वो कम्प्लेक्स है बिकॉज इस इंडिविजुअल में आपको दोनों में से कोई भी चीज नहीं चाहिए, आप दोनों भी चीजों को पसंद नहीं कर रहे, दोनों नेगेटिव है, रिपेलिंग है, आप जिस भी एक चीज के करीब जाएंगे और दूसरे को बेशक रिजेक्ट करेंगे, बोथ ऑफ द थिंग्स आर जनरली अनबेरेबल। एंड फाइनली जब वो इतना ज्यादा हो जाता है कि व्हाट हैपेंस इज द इंडिविजुअल ट्राइज टू लीव द कंफ्लिक्ट सिचुएशन, यानी कि वो दोनों को ही ऑल टुगेदर छोड़ देता है, लेकिन द फैक्टर्स इन पेरिफेरी ऑफ द सिचुएशन मेक इट डिफिकल्ट, यानी कि सिंपली सेइंग जो इंसान को एक मजबूरी होगी उसकी वजह से वो सिचुएशन से निकल नहीं पाएगा, उसको फिर इवेंचुअली फोर्सफुली चॉइस दोनों में से कोई एक करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, a student who cannot face examination or failure may try to run away from home. Sorry, run away. Um, sorry, the slide just went up. Yes, sorry. But the love and affection of the parents or financial problems may prevent him from doing so. यानी कि वो एक अवॉइड करना चाह रहा है सारे सिस्टम को, लेकिन साथ ही साथ उसको क्यों ये चीजें नहीं, क्यों वो सिचुएशन को कम्प्लीटली अबैंडन नहीं कर सकता, बिकॉज उसकी जो पेरिफेरी है, उसकी जो एनवायरनमेंट में फैक्टर्स हैं वो उसको नहीं अवॉइड करने दे रहे। Some people may resort to other means to get relief from tension, such as daydreaming, taking alcohol, chain smoking, suicide, etc. Totally avoidance by some means the goal for the individual. यहाँ पे जिस तरह क्या होता है कि for example, we have all seen our parents getting stressful for different conditions and different scenarios, and what sometimes like my parents, what they do is that when they have no control over it, when they do not have anything to address to the particular situation, उनके पास personal resources नहीं होती इस तरह की कि वो उस चीज को combat कर सकें, तो what they do is they just take a relaxant या वो sleeping pill ले लेते हैं sometimes, which has been obviously prescribed to them by a doctor, not like जो self medication ले रहे होते हैं, just to avoid the physiological effects of it, just to avoid being in a stressful condition throughout the whole situation, वो they resort to taking the specific drug, which is not a very well adapted pattern of behavior. लेकिन गोल क्या होता है कि आप किसी भी तरीके से उस एंजाइटी को अवॉइड करें। जो आपका approach avoidance conflict है, the third one. Now अब यहाँ में क्या है, there is only one goal object जिसके अंदर both positive और negative valencies मौजूद है। यहाँ पर compromise is the only alternative solution to overcome the stress. इसी तरह जो आपका multiple approach avoidance होता है, यहाँ पे it depends on the sum total of positive and negative valencies, यानी कि जहाँ पे positivity आपको ज्यादा नजर आ जाती है, आप उस साइड पे उसकी उस साइड पे चले जाते हैं एंड दूसरी चीज को अबैंडन कर जाते हैं। these coping strategies जो है ये इंडिविजुअल लेवल पे होती हैं, ये हर इंसान जो है वो अपनी लाइफ में इंडिविजुअली करता है। people facing conflicts may help themselves by examining the causes of conflict, trying to choose the best alternatives and जल्दी डिसीजन करना ताकि वो सिचुएशन से जल्दी निकल सके और वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है या जो उनको एंजाइटीज है वो शॉर्ट लिव्ड हो। they have to make use of their creative thinking, डाइवर्जेंट रीजनिंग, यानी कि वो अपने आप को फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल लेके जाएं, अपने आप को ओपन माइंडेड रखें और अपनी जो सिचुएशन है उसको बहुत एक्यूरेटली परसीव करें। Motives may influence our behavior, but the individual should not be the slave of his motives. Instead, he should be the master of his motives, so that he can have control over them. यानी कि आप अपनी motivations को या अपने desires को इस तरह से control करें कि आप rationally सोचें कि आपकी motivations आप like as an individual और motivation नहीं यहाँ पे देखते जब आपने इस तरह decisions करने होते हैं। You have to take the bigger picture into account. And finally, taking advice from our parents, elders, teachers, and counselors will be of great help to cope with and to resolve with conflicts.